اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سچے مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ ان دلوں کی نمایاں صفت اور بلند مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے جن کی نشانی قرآن کریم نے یہ بیان کی ہے کہ وہ خوف الہی سے لرزتے اور کانپتے ہیں۔ یہ وہ دل ہیں جن کے نہا خانوں میں ایمان سرایت کر چکا ہے اور جن کے گوشے گوشے پر خشیت الہی طاری ہوتی ہے، چنانچہ وہ دل عظمت و جلال اور مقبولیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور پروردگار نے ان کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ حسن انجام کا ذکر کرتے ہوئے ان کا خوب تزکیہ فرمایا ہے۔ وعظ و نصیحت اور قرآن مجید کی آیات سن کر ایک مومن یقیناً خوف الہی محسوس کرتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی روح آسمان جوار الہی میں منڈلانے لگتی ہے۔ خوف الہی سے لبریز یہی وہ دل ہے جو ایمانی حلافت کا ذائقہ چکھتے ہیں، اطاعت الہی کی لذت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، فتنوں اور شکوک و شبہات کے آگے بند باندھتے ہیں اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور عقل مند لوگ وہی ہیں جو بلند مقام اور بلند و بالا مقام و مرتبے تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ساتھ تعظیم الہی سے دلوں کا کانپنا اور لرزنا یہ مومنوں کی خاص خوبیوں میں سے ہے۔ زبان کو مسلسل ذکر الہی میں مصروف رکھنا دلوں میں خوف الہی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ اسی میں دلوں کی طہارت اور پاکی، جسموں کی اصلاح، نفوس کا تزکیہ اور سرگوشیوں کی حلاوت مضمر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب انہیں وعظ و نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس سے قبول کیا، اور جب انہیں ڈرایا گیا تو وہ ڈر گئے، اسی لیے ان کے دل خوف الہی سے لرزنے والے بن گئے۔ اذکار میں سے سب سے عظیم ذکر اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور اس کی آیات کو خوبصورت لب و لہجے میں گنگنا کر پڑھنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، جن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے نرم دل اور پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ جو شخص پوری توجہ سے کتاب اللہ کو پڑھے گا، اپنے سینے کو اس کے لیے کشادہ کرے گا اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کا دل نرم پڑ جائے گا، اس میں خوف الہی پیدا ہوگا، اور اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس سے شرم و حیا کا سبب ہوگا اور ایمان میں اضافے کا سبب بھی بنے گا۔ اگر ہم نے دل کو ایسی چیزوں سے بھر رکھا ہے جو دل کے درمیان اور نصیحت الہی سے فیض یابی کے درمیان رکاوٹ ہیں، تو دل کی حیات و بقا اور اس کی خشیت اور عزت کی ہم کیسے طمع کر سکتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا ہے؟ بس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنا دل قرآن کے پاس نہیں پائیں تو کہاں پائیں گے؟ اگر آپ واضح و نصیحت کو اور قرآن کا اثر اپنے دل میں محسوس نہ کریں تو اس کا سبب تلاش کر کے اس کی بیماری کا علاج کیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ شاعر اللہ کی تعظیم و توقیر کرنا دلوں میں خوف الہی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ ان کی تعظیم در حقیقت حکم الہی کی تعظیم ہے، کیونکہ ہر وہ چیز عظیم ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول نے عظمت و بڑائی بیان کی ہے، اور اس کی تعظیم و توقیر کرنا دلوں کی سالمیت اور درستی کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ، اور جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، کیونکہ یہ تعظیم دل میں موجود اللہ کے ڈر اور خوف سے ہی صادر ہوتی ہے۔
खौफ इलाही से पैदा, खौफ इलाही पैदा करने के असबाब में से ये भी है दिल को उस इल्म का मरकज बनाया जाए जो इल्म अस्माए हुस्ना और सिफात उलिया के जरिए इंसान को मार्फत इलाही तक पहुंचाता है। इरशाद बारी तआला है, और ताकि वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया जान लें कि बेशक वही तेरे रब की तरफ से हक है, तो वो उस पर ईमान ले आए, बस उनके दिल उसके लिए आजिज हो जाएं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार को सबसे ज्यादा जानने वाले थे, इसलिए सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले भी थे। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह से तो उसके बंदों में से सिर्फ जानने वाले ही डरते हैं। दिल में खौफ इलाही पैदा होने के असबाब में से ये भी है कि आदमी तौबा करने में बिल्कुल गफलत न बरते, मुसलसल इस्तिगफार करता रहे और अल्लाह की तरफ लौटने में जल्दी करे, क्योंकि दिलों की पाकीज़गी बख्शने वाले उन उमूर के बगैर दिल में कभी खौफ इलाही पैदा नहीं हो सकता। भला बीमार दिल में खौफ इलाही कैसे पैदा हो सकता है, और गाफिल दिल में खशियत इलाही कैसे पैदा हो सकती है। इरशाद बारी तआला है, अगर तुम दोनों अल्लाह की जनाब में तौबा करो, अगर तुम दोनों अल्लाह की जनाब में तौबा करो तो बेहतर, वरना तुम्हारे दिल तो माइल ही हो चुके हैं। और दूसरी जगह इरशाद बारी तआला है, बेशक जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जब उन्हें कोई खतरा शैतान की तरफ से आता है तो वो याद में लग जाते हैं, फिर अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं। नेकी और भुलाई के काम करने, बख्शिश और खैरात करने को मामूल बनाने और तरह तरह के एहसानात करने से भी इंसान का दिल नरम होता है, इसमें रिक्कत और खशियत इलाही पैदा होती है। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अपनी कसावत कल्बी की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने दिल को नरम करना चाहते हो तो मिस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पे हाथ फेरो। इसी तरह मौत को बकसरत याद करना, हम वक्त उसके लिए तैयार रहना भी इंसान को आखिरत की याद दिलाता है, इसे दुनिया से किनारा कश और बेरगबत कर देता है। मुर्दा दिलों में जिंदगी की रूह फूंकता है और उन्हें ख्वाबे गफलत से बेदार करता है। इरशाद बारी तआला है, बेशक इसमें उस शख्स के लिए बड़ी इबरत है जिसके पास समझने वाला दिल हो या वो मुतवज्जह होकर बात की तरफ कान ही लगाता हो। जो शख्स मुसलसल अपने दिल की पासबानी और निगरानी करता रहता है और अल्लाह के साथ रास्ते का मामला करता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत की तरफ जाने वाले रास्तों की रहनुमाई कर देता है और उसे सिरात मुस्तकीम पर साबित कदमी अता फरमा देता है। इरशाद बारी तआला है, और जिन्होंने हमारे लिए कोशिश की हम उन्हें जरूर अपनी राहें समझा देंगे। अहले बसीरत अपने दिलों की देखभाल करते रहते हैं, क्योंकि बंदों के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान होते हैं और वो उनको जैसे चाहे फेर देता है। इरशाद नबवी है, अरबी में दिल को कल्ब कहते हैं, ये उलट पुलट होता रहता है। दिल की मिसाल दरख्त के तने के साथ लटके हुए उस पर की मानिंद है जिसको हवा उल्टा सीधा करती रहती है। सबसे ज्यादा मार्फत इलाही रखने वाले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिल के फिरने से खौफ खाते, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने दिल की साबित कदमी की दुआ फरमाते और कहते, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना। भला बताइए दूसरे लोगों की क्या हालत होनी चाहिए जब अल्लाह ताला अपने बंदे को इस बात की तौफीक देता है कि वो अपने दिल में खौफ इलाही और तकवा को पैदा कर ले, तो अनकरीब वो उसका फल हासिल कर लेगा और बड़े इत्मीनान और सलामती के साथ उसे तोड़ेगा और दुनिया और आखिरत में बेहतरीन और खुशगवार जिंदगी दरअसल दिल में खौफ इलाही के समरात में से है। ऐसे लोग बरोज़ क़यामत कहेंगे, जैसे कि इरशाद बारी तआला है, कहेंगे हम तो इससे पहले अपने घरों में डरा करते थे, बस अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें लो के आज़ाब से भी बचा लिया। दिल में खौफ इलाही के समरात में से रब से सरगोशी की लज्जत और उससे मानूसियत के सिवा अगर कोई और चीज हासिल ना भी हो तो यही सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी कामयाबी है। इरशाद बारी तआला है, क्या काफिर बेहतर है या जो रात के औकात में सजदा और क़याम की हालत में इबादत कर रहा हो, आखिरत से डर रहा हो और अपने रब की रहमत की उम्मीद कर रहा हो। कह दो, क्या इल्म रखने वाले और बे इल्म बराबर हो सकते हैं? समझते वही हैं जो अकल वाले हैं। जब उन्होंने अपनी राहत और सुकून की लज्जत को रब की खातिर कुर्बान किया तो अल्लाह ने उन्हें अपनी इताअत और फरमाबरदारी की मिठास और अपने साथ असरगोशी की लज्जत से सरफराज कर दिया। इरशाद बारी तआला है, अपने बिस्तरों से उठकर अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं और हमारे दिए हुए इसमें से कुछ खर्च भी करते हैं। दिल की खशियत के समरात और फवायद में से ये भी है कि इंसान को खैर भलाई की तरफ सबकत करने और अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहने पर उभारती है। चुनांचे जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तन्हा ना छोड़ना और तू ही बेहतरीन वारिस है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तो उनकी भी हमने दुआ कबूल की और उन्हें यहया अता किया और उनकी बीवी को औलाद के काबिल बना दिया। ये सब लोग
भलाई के कामों की तरफ लपकते थे और हमें शौक और खौफ से पुकारते थे, और ये सब हमारे आगे झुकने वाले थे। दिल में जिस कदर खौफ और खशियत होगी उसी कदर फितनों और शहवतों से हिफाजत होगी, उसी कदर अल्लाह ताला उसके अंदर ईमान की मोहब्बत डाल देगा और ईमान से उसके दिल को मुज़य्यन कर देगा। उसी तरह ऐसे दिल वाला इंसान कभी फसाद और बिगाड़ पैदा करने वालों की राह पर भी नहीं चलेगा, बल्कि वो मामून और महफूज होगा, मुआशरे के अमनो अमान में अपना किरदार अदा करेगा। क्योंकि कामिल मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। यही वो सिफ्त है जिससे आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों में से एक बेटा मुत्तसिफ था, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्त दराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज़ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तो परवरदिगार आलम अल्लाह ताला से खौफ खाता हूं। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए कुरान अज़ीम को बाबरकत बनाए, मुझे और आपको इसकी आयात और जिक्र हकीम से नफा पहुंचाए। मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। अल्लाह ताला से, अल्लाह अज़ीम अज़मत वाले अल्लाह ताला से अपने लिए और आप सबके लिए इस्तिग़फ़ार करता हूं। तुम सब भी अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करो, यकीनन वो बख्शने वाला बड़ा ही मेहरबान है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसकी तारीफों की कोई इंतहा नहीं है, और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। जिस मालिक ने मोमिनों के लिए जन्नत का वादा किया है, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, जो चुने हुए पैगंबर हैं, और अल्लाह ताला आपकी आल और सहाबा इकराम पर भी रहमत नाज़िल फरमाए। हम्द व सलात के बाद मैं अपने आप को आप सबको अल्लाह ताला से डरने की वसीयत करता हूं। दिल का खौफ और डर मखलूकात पर रहम व करम करने और दूसरों को शिद्दत और सख्ती के बावजूद लुत्फ और नरमी का मामला करने पर आमादा करता है, और ये इंसान को रहमत इलाही का मुस्तहिक भी बना देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है। नीज ये भी फरमाया, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिक कायनात ने अपनी किताब में तुम्हें हुक्म दिया है, अल्लाह के बंदो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ो। अल्लाह और उसके फरिश्ते उन पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहिम और आले इब्राहिम पे नाजिल फरमाई, और अल्लाह तू इब्राहिम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर बरकतें नाजिल फरमा, जिस तरह इब्राहिम और आले इब्राहिम पर अल्लाह तूने बरकतें नाजिल फरमाई। ए अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत और जन्नत के करीब करने वाले कौल और अमल का सवाल करता हूं, और जो हमें जन्नत से करीब कर दे, और हम जहन्नम की आग से तेरी पनाह चाहते हैं, और हर ऐसे कौल फेल से भी जो हमें जहन्नम के करीब कर दे। ए अल्लाह, हम तुझसे हर भलाई का सवाल करते हैं, हाँ वो जल्दी मिलने वाली है या देर से, हम उसे जानते हैं या नहीं जानते। हर उस बुराई से तेरी पनाह मांगते हैं जो जल्दी आने वाली है या देर से, हम उसे जानते हैं या नहीं जानते। ए अल्लाह, हम तुझसे खैर व भलाई की इब्तिदा और इंतहा, उसकी जामे चीजों, उसके अव्वल आखिर और जाहिर व बातिन का सवाल करते हैं, और जन्नत में बुलंद दर्जात का सवाल करते हैं। ए हमारे परवरदिगार, हमारी मदद फरमा, हमारे खिलाफ किसी की मदद ना करना, हमारी ताईद और नुसरत फरमा, हमें इज्जत दे, हमें जलील न करना, हमारे हक में तदबीर फरमा, हमारे खिलाफ तदबीर न करना, हमारी रहनुमाई फरमा और हिदायत को हमारे लिए आसान कर दे, और जो हमारे खिलाफ बगावत करे उसके मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को धो दे, हमारी दलील को मजबूत बना, हमारी जुबान को दुरुस्ती अता कर, और हमारे दिलों से हिक़्द व हसद को निकाल दे। ऐ अल्लाह, तू बहुत ज्यादा बख्शने वाला और माफी को पसंद करने वाला है, लिहाजा हमें माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम तेरी नेमत के ज़ाइल होने, तेरी दी हुई आफियत के फिर जाने, तेरी नागहानी गिरफ्त से और तेरी हर किस्म की नाराजी से पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हम आजिज आ जाने और सुस्ती काहली का शिकार हो जाने से, बुज़दिली और बखीली से, सख्त बुढ़ापे से, कर्ज के बोझ और लोगों के जुल्म से तेरी पनाह चाहते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ हमेशा जिंदा रहने वाली जात, ऐ हर चीज को कायम रखने वाली जात, हम तुझसे तेरी ही रहमत का वास्ता देकर तलब करते हैं। हमारे सारे मामला संवार दे, और आंख झपकने से के बराबर भी हमें अपने नफ्स के सुपुर्द न करना। ऐ अल्लाह, हमारे इमाम खादिम हरमैन शरीफैन को अपने पसंदीदा उमूर की तौफीक अता फरमा, और उनके वली अहद को हर खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम पे बारिश नाजिल फरमा, अल्लाह रहमत की बरान रहमत, अल्लाह बरान रहमत का नज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह, तू हमें दुनिया और आखिरत में खैर व भलाई अता फरमा, और जहन्नम के अज़ाब से हमें बचा। यकीनन अल्लाह ताला अदल व ihसान का हुक्म देता है, और कराबतदारों के साथ सिला रहमी का हुक्म देता है।
اللہ رب العزت کا ذکر کرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو.